ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਬਾਦ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੰਜ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ 'ਚ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਕਰੀਏ। ਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਲਾ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਗਵੇਦ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ 'ਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗਭਗ 1500 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੁਰ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ, 3500 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੈਪੁਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਲੇਬੰਦ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੈਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਸਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਕਾਨਪੁਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਜੋਧਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਤਨਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਕਿਲੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਬਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜੜ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ? ਹਾਂ। ਆਬਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਬਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਹਰੀ ਭਰੀ, ਵਸੋਂ ਵਾਲੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਜ਼ਮੀਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਬਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ? ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਰਾਮਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਉਹ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਮੁਗਲ ਕਾਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂ, ਮੁਗਲ ਕਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਦੇਖੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਔਰੰਗਾਬਾਦ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ, ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਰ ਪੁਰਾਣਾ, ਆਬਾਦ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੰਜ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਗੰਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡੋ-ਇਰਾਨੀ ਬੋਲੀ ਮੀਡੀਅਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ। ਖਜ਼ਾਨਾ? ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੰਜ ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਰਿਆਗੰਜ, ਲਖਨਊ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤਗੰਜ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਿਪਟੀਗੰਜ, ਉੱਥੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਡਿਪਟੀਗੰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਿਆਗੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਦਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲਾ ਗੰਜ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮੇਟੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ? ਪੁਰ, ਆਬਾਦ, ਗੰਜ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਿਛੇਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜੜਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੰਜ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੌਣਕ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ, ਵਪਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਹਾਂ, ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ, ਸਕਾਈ ਹਾਈਟਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ? ये तो सोचने वाली गल है। बहुत बढ़िया। आज हम एक बड़ी दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं। भारतीय शहरों के नाम आपने गौर किया होगा अक्सर पुर, आबाद या गंज पे खत्म होते हैं। जी बिल्कुल। तो आज हम यही खोजेंगे कि इन लहकों का आखिर मतलब क्या है और ये क्या कहानी सुनाते हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ मुतालियाती मवाद है इस पर। सही। मकसद ये समझना है कि ये लफ्ज हिंदुस्तान की तारीख, उसकी सकाफत, जोग्राफिया के बारे में क्या जाहिर करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहले पुर, ये कहाँ से आया है पुर? देखें, पुर जो है ये संस्कृत का लफ्ज है।
इसका मतलब होता है किला या कह लें शहर। अच्छा। और ये बहुत ही पुराना है, मतलब आपको ऋग्वेद में भी इसका जिक्र मिलेगा, जो कोई 3,500 साल पुरानी किताब है। 3,500 साल? जी हाँ, वहाँ ये इस्तेमाल हुआ है किला बंद बस्तियों के लिए, मतलब मजबूत शहरों के लिए। और महाभारत के जमाने में भी जैसे हस्तिनापुर, वो नाम भी इसी रिवायत का हिस्सा है। तो मतलब कदीम हिंदुस्तान में शहर का जो तस्वुर था वो बुनियादी तौर पर दिफा से जोड़ा था, कलाबंदी अहम थी। बिल्कुल बिल्कुल, पुर का इतना ज्यादा इस्तेमाल यही दिखाता है कि भाई मुनज़्ज़म रिहाइश और बाहर के खतरों से बचाव कितना जरूरी समझा जाता था। ये बहुत पहले की बात है। और फिर कुरूने वुस्ता में क्या होगा? सुना है बादशाहों ने भी इसे इस्तेमाल किया। जी हाँ, हुआ ये कि मिडिल एजेस में राजाओं ने जब नए शहर बसाए तो अक्सर अपने नाम के साथ पोर लगा दिया। अच्छा जी, जैसे एक तरह से शाही पहचान बन गई, ताकत की अलामत। मिसाल के तौर पर जयपुर है महाराजा सवाई जय सिंह के नाम पर। ओह हाँ। या कानपुर कहते हैं राजा हिंदू सिंह के नाम पर। फिर नागपुर, उदयपुर, जोधपुर, बहुत सी मिसालें हैं। तो पोर में वक्त के साथ दिफा के अलावा शाही विरासत का मतलब भी शामिल हो गया। ठीक है, अच्छा अब आबाद की तरफ आते हैं। इसकी क्या कहानी है? आबाद फारसी से आया है, इसमें लफ्ज है आब। आब यानी पानी? बिल्कुल, आब यानी पानी। तो आबाद का सीधा मतलब हुआ वो जगह जहाँ पानी हो या बसने के लायक जगह, यानी जरखेज इलाका। तो इसकी जुग्राफियाई अहमियत ज्यादा हुई, मतलब पानी जरूरी था। यकीनन, पानी तो जिंदगी के लिए, खेती बाड़ी के लिए, बस्ती बसाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो आबाद नाम अक्सर इन जगहों को मिला जो पानी के करीब थी, यानी दरियाओं के किनारे वाले शहर। हाँ, अक्सर। जैसे आप देखें, मुरादाबाद जो है वो रामगंगा नदी के पास है। इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज, वो गंगा जमुना के संगम पर है। सही। तो पानी एक बुनियादी उनसर था। और मुगल दौर में क्या तब्दीली आई इस लफ्ज के इस्तेमाल में? मुगल दौर में आबाद का इस्तेमाल बहुत ही आम हो गया। बादशाह, गवर्नर वो अपने नामों पर शहर बसाते थे और साथ आबाद लगा देते थे। अच्छा, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद बसाया, औरंगजेब के नाम पर औरंगाबाद है, शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाया जो पुरानी दिल्ली है। हाँ हाँ। तो ये सिर्फ नाम नहीं रहा, ये एक तरह से हुक्मरान की मोहर बन गया। इलाके पर उनका कंट्रोल, उनकी सकाफत का असर, वो सब जाहिर करता था। यानी एक नई पहचान मिली इस इलाके को। बिल्कुल, और ये हिंदुस्तान में फारसी और इस्लामी असरात की आमद को भी दिखाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं रहा। आप देखें, पाकिस्तान में इस्लामाबाद, फैसलाबाद है। सही। बांग्लादेश में जलालाबाद है। तो ये लफ्ज फैला। वाह, तो आबाद सिर्फ नाम नहीं बल्कि रियासत, वसाइल और एक सकाफती दौर की पूरी कहानी है। बहुत खूब। चलें अब आखिरी लफ्ज गंज, इसके पीछे क्या है? गंज, इसकी जड़ें जो हैं वो पुरानी ईरानी जबानों में मिलती हैं, खास तौर पर मीडियन जबान में। वहां उसका मतलब था खजाना या जखीरा करने की जगह। खजाना? जी, खजाना। कुछ लोग इसे संस्कृत के लफ्ज गज से भी जोड़ते हैं, जिसका मतलब भी खजाना है। लेकिन वक्त के साथ इसका मतलब थोड़ा बदला और ये इस्तेमाल होने लगा मंडी के लिए, बाजार के लिए, या कोई भी ऐसी जगह जहां बहुत भीड़ भाड़ हो, कारोबार हो। खजाने से बाजार तक, ये कैसे हुआ होगा? ये तब्दीली दिलचस्प है। शायद इसलिए कि जहां सारा माल जमा होता था, जहां खरीदो फरोख्त होती थी, वो जगह खुद ही इलाके के लिए एक तरह का खजाना बन गई ना। हाँ, बात तो सही है। और वहीं सबसे ज्यादा गहमा गहमी होती थी। तो गंज का मतलब जखीरे की जगह से बढ़कर मसरूफ बाजार बन गया। आजकल कहाँ कहाँ मिलता है ये गंज? कोई मिसालें? बहुत हैं। लखनऊ में हजरतगंज तो बहुत मशहूर है। जी बिल्कुल। दिल्ली में दरियागंज है। कहते हैं पुराने वक्तों में यमुना नदी के किनारे वहाँ बड़ा बाजार लगता था, इसीलिए दरियागंज। अच्छा। फिर दिल्ली में ही मलकागंज है। सदर बाजार के इलाके में डिप्टीगंज है, वो आज भी बर्तनों का बहुत बड़ा होलसेल बाजार है। तो ये नाम अक्सर तिजारती मरकज की निशानदेही करते हैं। तो खुलासा ये हुआ कि ये तीनों लाहिके, पोर, आबाद और गंज, हर एक अपनी अलग तारीख, अपना अलग मतलब रखता है। बिल्कुल, ये तीनों मिलकर हिंदुस्तान की जो लिसानी, सकाफती, तारीखी गहराई है उसकी अक्कासी करते हैं। पुर हमें कदीम संस्कृत जड़ों और किलेबंद शहरों की तरफ ले जाता है। आबाद फारसी असर, पानी की अहमियत और मुगल दौर की हुक्मरानी और सकाफत को दिखाता है। सही। और गंज जो है वो वक्त के साथ तिजारती मराकज और बाजारों के बनने की कहानी सुनाता है। तो ये सिर्फ नाम के आखिर में लगे लफ्ज नहीं है, ये तो तारीख के जिंदा निशान है। वाकई ऐसा है जैसे नक्शे पर तारीख की अलग अलग परतें लिखी हुई हैं। आज हमने पुर, आबाद और गंज के जरिए इन कहानियों को समझने की कोशिश की। जी बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि बड़े सगीर के जो दूसरे इलाके हैं या दूसरी जबानें हैं, वहाँ नाम रखने के क्या तरीके रहे होंगे। हाँ, ये भी एक दिलचस्प सवाल है। वो नाम शायद लोगों की हिजरत के बारे में, पुराने तिजारती रास्तों के बारे में या मकामी रस्म रिवाज के बारे में क्या बता सकते हैं। ये एक बहुत वसी मैदान है जिस पर मजीद गौर किया जा सकता है। भारत के शहरों के नाम का रहस्य, पुर, आबाद और गंज का मतलब समझें। आपके शहर का नाम सिर्फ एक नाम नहीं, ये 3000 साल पुराना सीक्रेट कोड है।
नमस्ते। कभी सोचा है जयपुर में पुर और हैदराबाद में आबाद का क्या राज है? ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि हमारे इतिहास की खूबसूरत कहानी है। पुर संस्कृत का शब्द है, मतलब किला या शहर, और इसका जिक्र 3500 साल पुराने ऋग्वेद में भी है। राजा अपने नाम से पुर जोड़कर शहर को पहचान देते थे, जैसे राजा जय सिंह ने जयपुर बसाया। वहीं आबाद फारसी शब्द है, जहां आब मतलब पानी। ये एक बसी बसाई खुशहाल जगह को दिखाता है। मुगल बादशाह अक्सर अपने नाम पर शहर बसाकर आबाद लगाते थे, जैसे फिरोजाबाद। सोच रहे हैं कहानी खत्म? वेट, पुर और आबाद तो सिर्फ ट्रेलर था। असली खजाना तो गंज में छिपा है। जो अब रुकेगा वही इतिहास का असली पारखी बनेगा। आपका बोनस फैक्ट है गंज। ये फारसी शब्द खजाना से आया है और अब इसका मतलब है एक रौनक वाला बाजार या मंडी, जैसे दिल्ली का दरियागंज। तो गंज का मतलब है व्यापार और रौनक का केंद्र। Think of it like a cultural playlist. Pur is the track about ancient kingdoms and mighty forts. Abad is a poetic melody from Persia singing about life flourishing by water. And Ganj, that's the energetic beat of the marketplace, buzzing with trade and treasure. These words don't just name our cities, they tell their incredible living story. तो अब आप समझे, पुर में राजाओं की शान है, आबाद में जिंदगी की मुस्कान है और गंज में व्यापार की जान है। हर नाम एक कहानी है और आप उस कहानी का हिस्सा हैं। संक्षेप में, पुर, आबाद और गंज सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारे शहरों की पहचान, इतिहास और संस्कृति के प्रतीक हैं। नामा विच लुकिया इतिहास, साडे शहरां दी खास गलबात। हर नाम में एक दास्तान है, शहर की यही पहचान है। नामा विच वसदाए शहर दा दिल, यही है साडी मिठी महफिल। In a name, a city's soul finds its fame. शहर का नाम, उसकी अपनी कहानी और शान। जे तुसी किसी गंज वाले इलाके च रहंदे हो ता जेब च खजाना चेक करते रहा करो। अगर आपके शहर के नाम में आबाद है तो समझ जाइए आपके पूर्वज पानी के पास ही पार्टी करते थे। If you live in a pur, you basically have royal bragging rights. जिनके नाम में पुर या आबाद है, उनका एड्रेस तो गूगल से पहले हिस्ट्री बताता है। वादा है अगला वीडियो 2 गुना मजेदार होगा। जल्दी सब्सक्राइब करें।